Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about one of the important parameter of transmission line, that is reflection coefficient. And what is reflection coefficient? So reflection coefficient is nothing but it is the ratio of backward wave and forward wave. Okay, so basically the reflection coefficient is ratio of backward wave and forward wave, and which is given as gamma L is equal to V minus e raised to minus gamma L divided by V plus e raised to gamma L. And basically this reflection coefficient is measure of how much energy is reflected back from the load end to generator end or transmission load end to generator end of the transmission line. So suppose this is the transmission line, and if the energy is flowing from generator to load, this is the generator. So basically this is generator, and here we have the load. This is the load. So basically reflection coefficient measures the energy reflected back, how much energy is reflected back from the load end. So basically whenever energy is transmitted from generator to load, some amount of energy may get reflected back, and measure of this is nothing but reflection coefficient, and basically it is the ratio of backward wave to forward wave. Okay, we have also discussed about the match condition on the transmission line. That is, what is the match condition? Means if the load impedance is equal to the characteristic impedance, okay, that is Z0. Okay, so if this load impedance ZL with which the line is terminated is equal to the characteristic impedance of the transmission line, then reflection coefficient is 0. Basically reflection coefficient is 0. And if the reflection coefficient is 0, it means that there is no reflection on the transmission line. There is only energy flow on the transmission line from generator to load. There is no backward wave on the transmission line. Okay, and it is a very important condition, that is the matched load condition. Now today we will continue with this the same topic, that is the matched load condition. So there is no reflection on the line, okay, when ZL is equal to Z0. So this is basically known as a matched load condition. And this is similar to the maximum power transfer theorem in circuit theory. तो हमें आपने पढ़ा है सर्किट थियोरी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी क्या है इसमें कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड इफ सोर्स इंपीडेंस इज इक्वल टू लोड इंपीडेंस. सो सिमिलरली जनरेटर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है और वो प्रोपोगेट हो रही है थ्रू ट्रांसमिशन लाइन टू द लोड, then if ZL is equal to Z0, there is a match condition, then there is a no reflection. Whatever energy is transmitted, that whole energy is received by the load. And if ZL does not Z0, अगर load impedance जो है with which the line is terminated is not equal to characteristic impedance of the line, there is a reflection on the line. हमें reflected wave मिलेगा. Okay, forward wave तो होगा और reflected wave भी होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑन ट्रांसमिशन लाइन ZL इज इक्वल टू Z0. एंड व्हाट इज Z0? Z0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. ओके, नाउ लेट्स डिराइव द रिलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. जो हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में हमें वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन डिराइव करना है. तो व्हाट इज द वोल्टेज रिलेशन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन? सो वोल्टेज इज गिवन एज V इज इक्वल टू V प्लस ई रेज टू गामा L प्लस V माइनस ई रेज टू गामा L. नाउ लेट्स टेक V प्लस ई रेज टू गामा L कॉमन. यहां से इक्वेशन से V प्लस ई रेज टू गामा L को कॉमन ले लेते हैं. सो V प्लस ई रेज टू गामा L कॉमन, देन व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस V minus e raised to minus gamma L divided by V plus e raised to gamma L. And what is this quantity? This quantity is known to us. हम उसको जानते हैं. ये क्वांटिटी कौन है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट.
This is the reflection coefficient, tau L. This is the reflection coefficient tau L. Okay, so if we replace this by reflection coefficient, then our voltage at any point on the transmission line, that V of L is equal to V plus e raised to gamma L 1 plus tau L. Okay, similarly current का formula क्या है? Current is nothing but that is the I of L. The current on the transmission line at any location L is equal to I of L is equal to V plus divided by Z naught e raised to gamma L 1 minus tau L. So this is the relation of voltage and current in terms of reflection coefficient. Okay, तो हमें voltage and current कोई भी location पे मिल गया. So on the transmission line the current and voltage as a function of length that we know. Now अगर मुझे impedance find करना है कोई भी location पे, okay, throughout the transmission line, suppose ये transmission line है, so throughout the transmission line at any location if we would like to find out the impedance, that is denoted as Z as a function of L. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें बच्चों पता है कि impedance is nothing but it is the ratio of voltage and current. So impedance Z of L is nothing but it is the V of L divided by I of L. V of F divided by I of L. So Z of L is equal impedance at any location, that is a Z of L is equal to V of L divided by I of L. Now V of L that we know, that is V plus e raised to gamma L 1 plus tau L. Similarly IL भी हमें पता है, that is V plus divided by Z naught e raised to gamma L 1 minus tau L. So ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? V plus कैंसिल हो जाएगा, e raised to gamma L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 plus tau L divided by 1 minus tau L into ये Z naught बचेगा. So it will comes into numerator, that is a Z naught. So Z of L is equal to Z naught 1 plus tau L divided by 1 minus tau L. And if we invert this relation for this tau L, that is a reflection coefficient, then tau L is equal to Z of L minus Z naught divided by Z of L plus Z naught. Okay, and this is a very important relation. Okay, this is the relationship between the reflection coefficient, load impedance, or sorry, impedance at any location on the transmission line, and characteristic impedance, that is Z naught. Okay, so this is the tau L is equal to Z of L minus Z naught divided by Z of L plus Z naught. Now we also know that कि Z of L is equal to Z naught, ये रिलेशन में अगर मैं इसको e raised to minus 2 gamma L से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? That is Z of L is equal to Z naught 1 plus tau L e raised to minus 2 gamma L divided by 1 minus tau L e raised to minus 2 gamma L. Basically what is tau L? Tau L is the reflection coefficient. Okay, that is V minus e raised to minus gamma L divided by V plus e raised to gamma L. So tau L is equal to that relation. So if we replace this by tau L e raised to minus 2 gamma L divided by tau L e raised to minus 2 gamma L, then what this relation we are getting. And we also know that this reflection coefficient is related to ZL and Z naught by this relation, that is the tau L is equal to ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught. Okay, and if we place this tau L in this relation, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught, ये दोनों जगह पे replacing this tau L by this relation, then what we will get, that is the Z of L is equal to Z naught 1 plus ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught e raised to minus 2 gamma L divided by 1 minus ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught e raised to minus 2 gamma L. So this is the impedance at any location L. Okay, that is Z naught 1 plus ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught e raised to minus 2 gamma L divided by 1 minus ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught e raised to minus 2 gamma L. Now if we rearrange and write this equation or write this relation in terms of hyperbolic sine and cosine, okay, उसको मैं hyperbolic sine and cosine के फॉर्म में लिखूं, then what I will get, Z of L is equal to Z naught, और इसको rearrange भी किया है मैंने, it will be, अगर मैं simplify करूं उसको तो मुझे क्या मिलेगा रिलेशन, Z of L is equal to Z naught ZL cos hyperbolic gamma L plus Z naught sin
हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइडेड बाय जेड नॉट कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड एल साइन हाइपरबोलिक गामा एल, वेर cos hyperbolic gamma L is equal to e raised to gamma L plus e raised to minus gamma L divided by 2 and sin hyperbolic gamma L e raised to gamma L minus e raised to minus gamma L divided by 2। और ये जो cos hyperbolic gamma L and sin hyperbolic gamma L की ये फॉर्मूला अपने बेसिक मैथमेटिक्स के आपको पता है। ओके, सो व्हाट वी गॉट दैट इज इम्पीडेंस एट एनी लोकेशन L is related to load impedance, that is ZL, okay, by this relation, that is impedance at any location L, that is Z of L is equal to Z naught ZL, that is a load impedance, cos hyperbolic gamma L plus Z naught, that is a characteristic impedance, sin hyperbolic gamma L divided by Z naught cos H hyperbolic gamma L plus ZL sin hyperbolic gamma L, and this relation is known as a impedance transformation relation, very important। This formula is known as a impedance transformation relation, और ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज नोन एज अ impedance transformation relation, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज अ impedance transformation relation, okay, so if we know the value of Z of L, that is the load impedance, and Z naught, then we can find out impedance at any location using this formula, that is known as a impedance transformation relation। Now we will define this impedance in terms of normalized impedance। so normalized impedance क्या होता है, कोई भी इंपीडेंस को आप कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड करो तो आपको वो बन जाएगा नॉर्मलाइज इंपीडेंस हो जाएगा। सो इफ यू डिवाइड इंपीडेंस बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z नॉट, देन इट इज नोन एज अ नॉर्मलाइज इंपीडेंस। ओके, तो यहाँ पे इंपीडेंस Z है, उसको मैंने Z नॉट से डिवाइड किया, देन इट इज द नॉर्मलाइज इंपीडेंस Z बार। नॉर्मलाइज इंपीडेंस इज डिनोटेड बाय Z बार। सिमिलरली लोड इंपीडेंस है, उसको मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड करूं, that is Z naught, ZL divided by Z naught is known as a normalized load impedance। this is known as a normalized load impedance। ओके, तो कोई भी इंपीडेंस को आप Z naught से डिवाइड करो तो वो नॉर्मलाइज इंपीडेंस हो जाएगा। सिमिलरली द इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L, ओके, सो नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L इज गिवन एज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L डिवाइडेड बाय Z naught। मतलब हमें जो ये फॉर्मूला मिला है, अगर ये फॉर्मूला को मैं Z नॉट से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन में हम जो भी इंपीडेंस डिफाइन करेंगे वो नॉर्मलाइज इंपीडेंस होगा। वो कैसा होगा, नॉर्मलाइज इंपीडेंस, मतलब जितने भी इंपीडेंस होंगे उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द नॉर्मलाइज इंपीडेंस Z बार L। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको Z नॉट से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, Z बार L इज इक्वल टू ZL बार, बिकॉज दिस इज ZL डिवाइडेड बाय Z नॉट, ये Z नॉट हो जाएगा, यहाँ पे भी Z नॉट दैट इज 1, ओके, और यहाँ पे भी Z नॉट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बिकॉज Z नॉट डिवाइड बाय Z नॉट दैट इज 1। तो हमें क्या मिलेगा, Z बार L इज इक्वल टू ZL बार cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा, बिकॉज यहाँ पे 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस ZL बार साइन हाइपरबोलिक गामा L। सो दिस इज द इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L। सो नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L is given as ZL bar। so this is a normalized load impedance cos hyperbolic gamma L plus sin hyperbolic gamma L divided by cos hyperbolic gamma L plus ZL bar sin hyperbolic gamma L। and if we consider the load match condition, अगर मैं स्पेशल मैच कंडीशन कंसीडर करूं, so what is the match condition? मैच कंडीशन कौन सी है बेटा, ZL is equal to Z naught। अगर ZL is equal to Z naught लेंगे तो हमारा जो लोड इंपीडेंस है, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस इज नथिंग बट लोड इंपीडेंस डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। एंड फॉर मैच कंडीशन ZL is equal to Z naught, तो ये
नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस क्या हो जाएगा 1। तो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस अगर 1 हो गया तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, ओके, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइड बाय प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा एल। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इंपीडेंस, नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन विल बी इक्वल टू 1। नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जेड बार एल इज इक्वल टू 1, मतलब नॉर्मलाइज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन एल इज इक्वल टू 1। और ये क्या है? इंपीडेंस एट एनी लोकेशन डिवाइडेड बाय जेड नॉट, दैट इज द नॉर्मलाइज इंपीडेंस इज इक्वल टू 1। तो व्हाट दिस इंप्लाइज? दिस इंप्लाइज दैट इंपीडेंस एट एनी लोकेशन इज इक्वल टू जेड नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको आपने जो लोड इंपीडेंस है आपका विथ विच इट इज टर्मिनेटेड, ओके, आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो लोड इंपीडेंस है जेड एल, इफ इट इज टर्मिनेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट, देन द इंपीडेंस एट एनी लोकेशन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विल बी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। मतलब अगर मैच कंडीशन है, आपने ट्रांसमिशन लाइन को मैच मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से टर्मिनेट किया है, देन आप कोई भी पॉइंट पे अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन कोई भी पॉइंट पे आप इंपीडेंस मेजर करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपीडेंस एट एनी लोकेशन ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द इंपीडेंस ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन आपने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से टर्मिनेट की है तो आप कोई भी जगह पे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन कोई भी जगह पे आप इंपीडेंस मेजर करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही होगा। अगर आपने मैच्ड लोड कंडीशन नहीं है, मतलब जेड ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट, देन इंपीडेंस मेजर्ड एट एनी लोकेशन विल बी द फंक्शन ऑफ लेंथ। वो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड्स ऑन लेंथ। यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन। ओके, सो इफ जेड ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट, देन मतलब मैच लोड कंडीशन नहीं है, देन इंपीडेंस मेजर्ड एट एनी लोकेशन विल बी फंक्शन ऑफ लेंथ। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। एज यू कैन सी, द इंपीडेंस एट एनी लोकेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एल। ओके, सो वी हैव टू स्पेशल केस फॉर इंपीडेंस एट एनी लोकेशन। हमें दो चीज याद रखनी है फॉर इंपीडेंस एट एनी लोकेशन। If line is terminated with the characteristic impedance Z0, then impedance at any location on transmission line is equal to characteristic impedance. अगर matched load condition नहीं है, then impedance at any location will be function of length. Okay, so what is the characteristic impedance? अगर मैं characteristic impedance को define करना चाहूँ, अभी अब तक हमने बोला कि characteristic impedance है. Now if I would like to define the characteristic impedance on transmission line, then it is the impedance with which, if it is the impedance with which the line is terminated, then impedance measured at any location on the transmission line is equal to the terminating impedance called characteristic impedance. Okay, मतलब characteristic impedance कौन सा impedance है? ये कौन सा impedance है? It is the impedance with which if the line is terminated, then impedance at any location will be equal to the terminating impedance. And what is the terminating impedance in that case? That is a characteristic impedance. So characteristic impedance can be defined in this way. Okay, फिर से अगर मेरी लाइन जो है, फिर से मैं आपको समझाता हूं, उसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से टर्मिनेट किया है. ओके, इफ दिस जेड ऑफ एल इज इक्वल टू जेड नॉट, ओके, देन if I measure the impedance at any location on transmission line, that is Z of L is equal to Z naught. Okay, so what is the characteristic impedance? Characteristic impedance is the impedance with which if the line is terminated, then impedance at any location on the line is equal to the terminating impedance, which is characteristic impedance. क्लियर? तो आप कोई भी पॉइंट पे आप मेजर करेंगे इंपीडेंस तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही मिलेगा. ओके, दूसरी डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की है, वो मैं आपको समझाता हूं कि अगर सपोज मान लो कि मैच कंडीशन है, ये मैच कंडीशन है, मतलब दैट इज जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट, ये मैच कंडीशन है ऑन द ट्रांसमिशन लाइन.
तो अगर ZL इज इक्वल टू Z0 होगा तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज अ मैच्ड लोड कंडीशन। अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 होगा इसका मतलब देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन, देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, नो रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, रिफ्लेक्शन on transmission line as we know there is a no reflection on transmission line। तो मतलब क्या हुआ? कोई रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगा, देयर ओनली एग्जिस्ट इंसिडेंट वेव एंड विच सीज द इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z0। सो इन मैच कंडीशन देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, ओनली इंसिडेंट वेव एग्जिस्ट ऑन द लाइन एंड इंसिडेंट वेव सीज एन इम्पीडेंस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। मतलब लाइन पे आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ क्या है, अगर ZL इज इक्वल टू Z0 है तो आपको कैसा लगेगा कि लाइन पे सिर्फ इंसिडेंट वेव या रिफ्लेक्शन वेव, रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है। ओके, मतलब क्या हुआ? देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन, मतलब वो आपका इंसिडेंट वेव है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो कभी भी वापिस ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेव है, इंसिडेंट वेव जो है ऐसे जा रहा है, वो जा ही रहा है, वो वापिस ही नहीं आ रहा है बिकॉज रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन, इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा ट्रांसमिशन लाइन विल बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट लेंथ लाइन। मतलब क्या हुआ कि वो वेव चलता ही जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन पे, रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है, मतलब वेव कभी भी वापिस ही नहीं रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी वेव वो वापिस, इंसिडेंट वेव कभी वापिस नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो चलता ही जा रहा है। इसका मतलब फिजिकली इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि आपका वेव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता रहे। मतलब क्या हुआ, आपका वेव चलता ही जा रहा है, इसका मतलब द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वो इनफाइनाइट लेंथ है, चलती जा रही, चलती जा रही। सो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन पे मैच कंडीशन कंसीडर करूं तो रिफ्लेक्शन ही होगा, सिर्फ इंसिडेंट वेव चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मतलब क्या हुआ, कोई वो इंसिडेंट वेव वो कभी वापस नहीं आ रहा है, मतलब वो चलता ही जा रहा है फॉर एवर, इट विल कीप ऑन कंटिन्यू फॉर एवर। मतलब ट्रांसमिशन लाइन विल बी कंसिडर्ड एज अ इनफाइनाइट लेंथ लाइन। ओके, तो उस केस में मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को कैसे डिफाइन करूंगा? सो इन दैट केस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज डिफाइंड एज अ, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ। मतलब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ओके, और ये ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट इंपीडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बोलेंगे। ओके, बिकॉज वहां पे रिफ्लेक्शन, इनफाइनाइट लाइन मतलब लाइन आपका वेव चलता ही जा रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है। और रिफ्लेक्शन जिसमें नहीं है, ओके, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या डिफाइन करेंगे? तो उसमें कोई भी पॉइंट पे इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही होगा। सो वी कैन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन दिस टू वेज। ओके, ये दो वे से हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स जनरलाइज द इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। हमें जो इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यहाँ पे जो मिला था उसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है वो किसके बीच का रिलेशन है? इंपीडेंस एट एनी लोकेशन L विद द लोड इंपीडेंस, ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ये इंपीडेंस रिलेशन को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरलाइज मतलब ऐसा नहीं कि impedance at any location is only related to ZL, but any impedance at any place is related to other impedance at any other location। मतलब ये हुआ बच्चों कि सपोज मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पे दो ये पॉइंट जो है वहां पे इंपीडेंस सपोज Z2 है, कितना है? Z2, और ये पॉइंट पे सपोज इंपीडेंस Z1 है, और ये दोनों का मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं उसको इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से दे सकता हूं। मतलब मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इंपीडेंस एट एनी लोकेशन इज ओनली रिलेटेड टू लोड इंपीडेंस, बट इंपीडेंस एट एनी वन लोकेशन इज रिलेटेड टू इंपीडेंस एट एनी अदर लोकेशन, दैट वुड बी द जनरलाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, ये ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, और ये पॉइंट पे इंपीडेंस Z1 है और ये इंपीडेंस Z2 है, और उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द L। लेंथ कितनी है? L। एंड दिस एरो बेसिकली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इंडिकेट करे, मतलब यहाँ पे जनरेटर है, एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम जनरेटर टू लोड। ओके, फ्रॉम मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जनरेटर है
और यहाँ पे लोड है. So energy is flowing from generator to load. So using same impedance transformation relation, okay, अगर मैं Z1 मुझे पता है, कोई भी लोकेशन पे Z1 पता है और Z2 मुझे फाइंड करना है, तो Z2 में impedance transformation relation से फाइंड कर रहा हूँ. That is Z2 is equal to Z0. Z0 is replaced by Z1. Z0 is replaced by Z1. ये जो ZL जो था उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? Z1 से. सो ZL इज रिप्लेस बाय Z1. जो हमारा इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन था उसमें ZL को मैं Z1 से रिप्लेस करूं एंड हमारा जो Z ऑफ L था उसको मैं Z02 से रिप्लेस करूं, Z2 से. तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? Z2 इज इक्वल टू Z0 इन द ब्रैकेट Z1 cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस Z0 sin हाइपरबोलिक गामा L डिवाइडेड बाय Z0 cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस Z1 sin हाइपरबोलिक गामा L. सिर्फ मैंने क्या किया? ZL को Z1 से रिप्लेस किया और हमारा जो Z ऑफ L था, दैट इज इंपीडेंस एट एनी लोकेशन, दैट इज रिप्लेस बाय Z2. ओके, समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी नो द इंपीडेंस Z1 एट सम लोकेशन, तो ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मुझे कोई भी लोकेशन पे Z1 पता है, इंपीडेंस Z1 पता है, देन फ्रॉम Z1 at distance L, from Z1 at distance L, we can find out Z2 using this relation, using this impedance transformation relation. Similarly, अगर मुझे Z2 पता है at this location, if I know the Z2 and if I would like to find out Z1, then I can find out this using the same relation. Okay, तो कैसे होगा? मुझे Z2 पता है, okay, और सॉरी मुझे Z2 पता है, यस मुझे Z2 पता है और मुझे Z1 फाइंड करना है. तो ये क्या हो जाएगा? ये Z2 इज रिप्लेस बाय Z1 एंड Z1 इज रिप्लेस बाय Z2. तो Z1 इज इक्वल टू Z0 Z2 cos हाइपरबोलिक गामा L माइनस Z0 sin हाइपरबोलिक गामा L डिवाइडेड बाय Z0 cos हाइपरबोलिक गामा L माइनस Z2 sin हाइपरबोलिक गामा L. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करो कि यहाँ पे प्लस साइन है वो माइनस हो गई. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी. इन दिस केस वी आर गोइंग इन दिस केस, ये केस में पहले केस में क्या था? मुझे Z1 पता था और मुझे Z2 फाइंड करना है, मतलब वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द जनरेटर. सो L इज टेकन एज पॉजिटिव, L इज टेकन एज पॉजिटिव. बट इन दिस केस वी आर मूविंग फ्रॉम Z2 to Z1, मतलब Z2 पता है और Z1 फाइंड करना है, मतलब वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द जनरेटर, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द जनरेटर. सो इन दैट केस L इज टेकन एज नेगेटिव, L इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द जनरेटर. तो ये चीज आपको सिर्फ याद रखनी है. ओके, सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, सो वी हैव डिस्कस और वी हैव डिराइव द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज द इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन. सो इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन किसके लिए हेल्प करता है? सो अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी पॉइंट पे इंपीडेंस पता है और दूसरे पॉइंट पे एट सम डिस्टेंस at other point, if I would like to find out the impedance, then I can easily find out that impedance using impedance transformation relation. So let's stop here. We'll continue discussion on transmission line, other aspect of transmission line in our next video lecture. Thank you very much.